CBSE Class 7, Lesson 7, My Brother's Great Invention. Detailed summary in simple English. The story, My Brother's Great Invention, is narrated by Anita, a 14-year-old girl living in Kolkata, formerly Calcutta, India. She describes her younger brother Anand, who is 13-year-old and loves inventing things, often causing trouble at home. Anand thinks he is a scientist and enjoys tinkering with electrical gadgets, tools, and wood to create inventions that usually don't work as planned. The story starts with Anand's latest invention, a burglar alarm. Due to recent thefts in their colony, Anand decides to make an alarm to catch thieves. He rigs it so that when the door is opened softly, it triggers a bell and drops a water bag on the intruder's head. Anita wants him not to involve her, but she helps a little. However, their father comes home first, opens the door softly, and gets soaked with water. Papa gets very angry and shouts while their mother tries to calm him down. Anand hides until dinner, and Anita stays out of trouble. After this incident, Anand stops inventing for a week. Then the family watches the movie Back to the Future, which is about a time machine. This inspires Anand to build his own time machine. He takes apart household gadgets like the oven and mixer and works in his room for 2 weeks, making a lot of noise with hammering and sawing. His room becomes full of wires, springs, levers, bulbs, and a big control panel. Anand looks messy and doesn't even comb his hair. When the time machine is ready, Anand wants to taste it, but Papa says no firmly, thinking it's dangerous. Ma feels sorry for Anand and suggests they at least look at it. The next day, Papa and Ma go to Kharagpur for a wedding, leaving Anita and Anand alone for one night. Ma makes Anand promise not to touch the time machine, and he agrees reluctantly. Anita is relieved. That night, while Anita is reading a novel and Anand is sleeping, Anita hears scratching and rattling at the front door. She wakes Anand and they see a thief break in. The thief is Boppa, a man who sweeps the compounds in their neighborhood and knows when people are away. Boppa threatens them with a cudgel, means a stick, locks them in their room, and asks for the father's room to steal things. Anand cleverly tells Boppa that the father's room is next door, which is actually Anand's room with the time machine. This buys them time. Soon they hear a crash, screams, thumps, and eerie whine and humming from the room. Anand realizes the thief has accidentally started the time machine. They shout for help and neighbors come running. The neighbors unlock the door and search the house, but Boppa is gone. They find only his green scarf near the time machine's panel. The time machine is still humming softly. The neighbors think the thief might have escaped, but Anand believes his time machine worked and sent Boppa to the past. Boppa is never seen again. When Papa and Ma return,
Papa dismantles the time machine, thinking it's unsafe. Anand is proud and calls himself a genius. He starts a new project, a telephone to contact creatures in outer space. Anita promises to tell more about it next time. So this is the story that highlights Anand's creativity, the family's patience, and a mix of humor and mystery about whether the time machine truly worked. CBSE Class 7, Lesson 7, My Brother's Great Invention. विस्तृत सारांश सरल हिंदी में। कहानी माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन अनीता राव बदामी द्वारा लिखी गई है और अनीता नाम की 14 साल की लड़की द्वारा सुनाई जाती है जो कोलकाता में रहती है। वह अपने छोटे भाई आनंद का वर्णन करती है जो 13 साल का है और आविष्कार करने का बहुत शौकीन है, जो अक्सर घर में परेशानी पैदा करता है। आनंद खुद को वैज्ञानिक मानता है और बिजली के सामान, औजारों और लकड़ी से खेलकर ऐसे आविष्कार बनाता है जो आमतौर पर सही से काम नहीं करते। कहानी की शुरुआत आनंद के नए आविष्कार से होती है, एक चोर अलार्म। कॉलोनी में हाल ही में चोरियां होने के कारण आनंद चोर पकड़ने के लिए अलार्म बनाता है। वह इसे इस तरह सेट करता है कि अगर दरवाज़ा धीरे से खोला जाए तो घंटी बजती है और पानी का वेग चोर के सिर पर गिरता है। अनीता उसे चेतावनी देती है कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन थोड़ी मदद करती है। हालांकि उनके पिता पहले घर आते हैं, दरवाज़ा धीरे से खोलते हैं और पानी से भीग जाते हैं। पापा बहुत गुस्सा होते हैं और चिल्लाते हैं, जबकि उनकी माँ उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। आनंद रात के खाने तक छिप जाता है और अनीता मुसीबत से बच जाती है। इस घटना के बाद आनंद एक हफ्ते तक कोई नया आविष्कार नहीं करता। फिर परिवार बैक टू द फ्यूचर फिल्म देखता है, जो एक टाइम मशीन के बारे में है। इससे प्रेरित होकर आनंद अपनी टाइम मशीन बनाने का फैसला करता है। वह घर के सामान जैसे ओवन और मिक्सर को तोड़ता है और 2 हफ्तों तक अपने कमरे में काम करता है, जहाँ बहुत शोर होता है, हथौड़े मारना और आरी चलाना। उसका कमरा तारों, स्प्रिंग्स, लीवरों, बल्बों और एक बड़े कंट्रोल पैनल से भर जाता है। आनंद गंदा दिखता है और बाल भी नहीं संवारता। जब टाइम मशीन तैयार हो जाती है, आनंद इसे आजमाना चाहता है, लेकिन पापा सख्ती से मना कर देते हैं। सोचते हैं कि यह खतरनाक है। माँ आनंद पर तरस खाती है और कम से कम इसे देखने का सुझाव देती है। अगले दिन पापा और माँ खड़गपुर में एक शादी के लिए जाते हैं। अनीता और आनंद को एक रात के लिए अकेला छोड़कर माँ आनंद से वादा लेती है कि वह टाइम मशीन को नहीं छुएगा और वह अनिच्छा से सहमत होता है। अनीता राहत महसूस करती है। उस रात अनीता एक उपन्यास पढ़ रही होती है और आनंद सो रहा होता है। तभी अनीता दरवाजे पर खरोंचने और खटखटाने की आवाज़ सुनती है। वह आनंद को जगाती है और वे देखते हैं
कि एक चोर घर में घुस आता है। चोर बुप्पा है, जो उनके मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाला आदमी है और जानता है कि कब लोग बाहर होते हैं। बुप्पा उन्हें लाठी से धमकाता है और उन्हें कमरे में बंद कर देता है और पिता के कमरे के बारे में पूछता है ताकि चोरी कर सके। आनंद चालाकी से बुप्पा को बताता है कि पिता का कमरा अगला वाला है, जो वास्तव में आनंद का कमरा है, जहां टाइम मशीन है। इससे उन्हें सोचने का समय मिलता है। जल्द ही वे कमरे से धमाके, चीखें, थपथपाहट और अजीब सी सीटी और हमिंग की आवाज़ सुनते हैं। आनंद समझ जाता है कि चोर ने गलती से टाइम मशीन शुरू कर दी है। वे मदद के लिए चिल्लाते हैं और पड़ोसी दौड़ कर आते हैं। पड़ोसी दरवाज़ा खोलते हैं और घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन बुप्पा गायब है। वे केवल उसका हरा स्कार्फ टाइम मशीन के पैनल के पास पाते हैं। टाइम मशीन अभी भी धीरे से हमिंग कर रही है। पड़ोसी सोचते हैं कि चोर भाग गया होगा, लेकिन आनंद मानता है कि उसकी टाइम मशीन काम कर गई और बुप्पा को अतीत में भेज दिया। बुप्पा कभी दोबारा नहीं दिखता। जब पापा और माँ लौटते हैं, पापा टाइम मशीन को तोड़ देते हैं। सोचते हैं कि यह असुरक्षित है। शायद संदेह करते हैं कि यह सच में काम कर गई। आनंद गर्व करता है कि उसने ये कर दिखाया और खुद को जीनियस कहता है। वह एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, अंतरिक्ष में जीवों से संपर्क करने के लिए एक टेलीफोन। अनीता वादा करती है कि अगली बार उसके बारे में बताएगी। तो लगभग तौर पर कहानी आनंद की रचनात्मकता, परिवार की सहनशीलता और इस रहस्य पर जोर देती है कि टाइम मशीन सच में काम कर गई, जिसमें हास्य और रहस्य का मिश्रण देखने को मिलता है। CBSE क्लास 7 लेसन 7 माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। विस्तृत सारांश आम ओडिया देखा। कहानी माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन अनीता राव बदामी द्वारा लिखित, जहाँ को अनीता नामक जड़े 14 वर्षीय झील वर्णना कर जी कोलकाता रोचंती। से तांको छोट भाई आनंदर वर्णना करुछंती, जे 13 वर्षर एवं नुआ नुआ जिनिस आविष्कार करने को बहुत भल पाए, जहाँ घरे अनेक समस्या सृष्टि करे। आनंद निजको वैज्ञानिक मन करे और विद्युत सामग्री, विभिन्न प्रकार सरंजाम, औजार एवं काठ सहित खेली एमिति आविष्कार करे जहाँ साधारणतः ठीक भाव में काम करे नहीं। कहानीर आरंभ आनंदर नुआ आविष्कार हुए, जहाँकि हूँ एक चोर आलार्म। कॉलोनी रे निकटरे चोरी हेबा कारणरू आनंद चोर धरिया आलार्म तैयारी करे। से एहाकू एमिति सेट करे जे जदि द्वार धीरे धीरे खोला जाए तेबे घंटा बाजिबो एवं पानी बैग चोर मुंडरे पड़िबो। अनीता तांको चेतावनी दिए जे से एथिरे जड़ित हेबाकू चाहू नाही, किंतु से किछि साहाय्य करि परिबो। किंतु तांको बापा प्रथमे घर को आसंती, द्वार धीरे खोलती एवं पानी रे भिजी जाती। तांको बापा बहुत रागी जाती और चित्कार करती, जेतेबेले तांको माँ तांको शांत करने को चेष्टा करती। आनंद रात्रि भोजन पर्यंत लुचि जाए और अनीता ए सब हैराणरू बंची जाए। यही घटना पर आनंद एक सप्ताह पर्यंत कौनसी नुआ आविष्कार करे नाही। तापर परिवार
बैक टू द फ्यूचर फिल्म देखे जहाँ एक टाइम मेसीन विषय यही ठारू प्रेरणा नहीं आनंद निजर टाइम मेसीन तैयारी करने को निष्पत्ति निए। से घरर सामग्री जमीक ओभेन एवं मिक्सर को भांगे एवं 2 सप्ताह पर्यंत तांको कोठरी रे काम करे जोठारे बहुत शब्द हुए हाथुड़ा मारिबा आरी चलेबा एसब प्रकार तांको कोठरी तार स्प्रिंग लिभर बल्ब आउ छोट बड़ एक कंट्रोल पैनल रे भर्ती हो जाए। आनंद बहुत मैला देखा जाए एवं तांको बाल मध्य से सजाड़ती नहीं। जेतेबेले टाइम मेसीन प्रस्तुत हुए आनंद यह परीक्षा करने को चाहे किंतु तांको बापा कड़ाकड़ी मना कर दियंती भावती जे यह विपदपूर्ण। माँ आनंद उपरे दया करी कम से कम या देखिबार प्रस्ताव दियंती अति कम रे या देखिबार प्रस्ताव दियंती। परदिन पापा और माँ खड़गपुर एक विवाह रे जोग देवाई जाती। अनिता और आनंद को एक रात्रि पई एकुटिया छाड़ी करी माँ आनंदरू प्रतिज्ञा निए जे आनंद ठारू प्रतिज्ञा नियंती जे से टाइम मेसीन को छुईब नहीं एवं से अनिच्छारे सहमत मध्य हुए। अनिता राहत अनुभव करे अर्थात अनिता आश्वस्ति अनुभव करे। सही राति रे अनिता एक उपन्यास पढ़ुवा बेले एवं आनंद शोइथिबा बेले अनिता द्वार रे किछि गोटे खटखट हेबार शब्द एवं किछि कई जणे रांपुथिबार शब्द शुणिबाकू मिलता। से आनंद को उठाए एवं से माने देखती जे चोर घर को पशि आसुछि। चोरटी हेउछि बोप्पा जी तांको महल्ला रे झाड़ू लगाउथिबा जणे लोक एवं से जाने केबे लोक माने बाहर को जाती। बोप्पा सेमानंकु लाठी रे धमकाए अर्थात बाड़ी देखाई करी धमकाए व सेमानंकु कोठरी रे बंद कर दिए एवं तांको बापा कोठरी विषय पचारे जहाकू चोरी करने को से आसीछि। आनंद चालाकी रे बोप्पा को कहे जे बापा कोठरी परवर्ती अटे जहाँ वास्तव में आनंदर कोठरी अटे जोठारे टाइम मेसीन अच्छी। यह सेमानंकु चिंता करिवार समय दिए। शीघ्र सेमाने कोठरी धमाका चित्कार थपथपाहट एवं गोटे अजब सिटी आउ हमिंग शब्द शुणा पाती। आनंद बुझी जाए जे चोर भूल टाइम मेसीन आरंभ कर देछि। सेमाने साहाय्य पाई चित्कार करती ओ पड़ोशी दौड़ी आसती। पड़ोशी द्वार खोलती एवं घर भीतर खोजती किंतु बोप्पा को पाती नहीं कारण बोप्पा गायब हो जाइछि। सेमाने केवल तांकर सबुज स्कार्फ टाइम मेसीन पैनल पाखरे देखा पाती। टाइम मेसीन एबे भी धीरे धीरे हमिंग शब्द करुअछि। पड़ोशी भावती जे चोर पलाई जाइछि किंतु आनंद विश्वास करे जे तांको टाइम मेसीन काम करिछि एवं बोप्पा को अतीत को पठाई देइछि। बोप्पा केबे भी पुनर्बार देखा जाई नहीं। जेतेबेले पापा और माँ फेरती पापा टाइम मेसीन को भांगी दियंती भावती जे यह असुरक्षित। आनंद गर्व करे जे निजकू जीनियस कहे। से एक नुआ प्रोजेक्ट आरंभ करे। अंतरिक्ष रे जीव मानक सह जोगाजोग करिया पई एक टेलीफोन। अनिता प्रतिज्ञा करे जे परवर्ती थर यह विषय कहिबो। तेणु एतिकिरे कहानीटी सरीछि। तेणु ये कहानी आनंदर रचनात्मकता परिवार धैर्य और टाइम मेसीन सतरे काम करिछि कि नहीं यही रहस्य उपरे जोर देइछि। जोंथिरे हास्य और रहस्यर मिश्रण रहिछि।